This factor affecting microorganism in food, the survival and activity of microorganism means survival and activity of microorganism in foods, it depends upon the several factors. What are those factors? Number, that means microbial load, and the types of microorganism present, whether it is a sensitive or stable. Then the types of food, किस तरह का food है, treatment to which the food has been exposed, किस तरह का treatment हमने apply किया food के ऊपर में, so that the microbes may survive or it may kill. Then the processing and storage treatment that the food receive, किस तरह का processing apply हमने किया है, processing method हमने apply किया है, and what type of storage treatments or storage facility we are giving to that type of product. Whether it has to be consumed as it is, that means ready to eat or ready to cook. So these are the some factors which affects the survival and the activity of the microbes. The food associated microorganisms may have useful function, cause spoilage, cause health hazard, play no role, or remain inert. So these are the means microbes which are associated with foods having a function you can say useful function भी हो सकता है अगर हम food preparation में use करते हैं तो it may also cause spoilage. Some spoilage bacteria is there too, or some microbes which are helping in which play in the spoilage activity. अगर कोई pathogenic in nature है तो it may cause health hazard, and some microbes will be there which is playing no role. That means they will be maybe in the dormant state, they will be inert, they are not showing any activity. So these are the some activity of microbes. What activity? Activity in terms of अगर कुछ फूड प्रिपरेशन में मदद कर रहा है तो दैट इज द यूजफुल फंक्शन, अगर कुछ स्पॉइलेज में कर रहा है तो वो स्पॉइलेज एक्टिविटी, अगर कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी कर रहा है सो दैट इज द पैथोजेनिक, दैट मींस मे कॉज हेल्थ हैजार्ड, अगर कुछ रोल अदा नहीं कर रहा है सो दैट मींस इज नॉट playing any role in the food, that means they may be in the dormant state. Then causes for spoilage of food. Spoilage of food usually occurs due to the undesirable changes brought about by the microorganism in the order. मतलब ऑर्डर में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, टेस्ट में चेंज हो सकता है, टेक्सचर में चेंज हो सकता है, एंड उसके अपीयरेंस में भी चेंज हो सकता है. So these are the changes if it is occurring in the food, that means it may leads to the spoilage. Some microorganisms may not directly involve in the spoilage but brings about changes in the food that will facilitate growth of spoilage. कुछ microbes ऐसा होता है means they are not playing a direct role in the spoilage activity, but it may support in terms of अगर कुछ ऐसा कंपाउंड वो बनाएगा, वो कंपाउंड स्पॉइलेज टाइप ऑफ बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा ग्रोथ में. सो दे आर प्लेइंग ए इनडायरेक्ट रोल, नॉट ए डायरेक्ट रोल. सो दैट एग्जांपल, one example बता रहा है bacteriophage attacking useful organism and facilitating growth of undesirable organism leading to spoilage. So that is one of the example. Useful organisms are those which by their activity or fermentation reaction facilitated by the microbial enzyme produce desirable changes in food. Example है बेकरी. बेकरी को बनाने में भी हम यूज करते हैं, डेयरी में भी यूज करते हैं, वाइन में भी यूज करते हैं, बियर में भी यूज करते हैं. तो these are the some useful microbial activity or useful microbial function that we are using for the preparation of the food. Then the presence of a small number of microorganisms associated with food may not cause any problem. अगर कम नंबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, but their unrestricted growth can result in spoilage. But अगर वही uncontrolled growth और multiplication हो रहा है तो it may result into the spoilage or deterioration of the food, making unfit for the human consumption. The wide variety of microorganisms associated with food is mainly saprophytic.
They cannot be avoided in food as these are derived from the environment in which the food is prepared, processed, and also difficult to eliminate completely. However, it is possible to reduce the number or decrease their activity by altering the environmental condition. So this we can do by the hurdle technology. Hurdle technology, you know na? Hurdle technology, that means we are making the environment, food environment, so complex that microorganisms will not capable to grow or multiply. So food की environment को हम complex कर देते हैं. That's why it is called hurdle technology. So we are applying 2 to 3 different processing method or preservation methods so that microbes will not grow on the food, or they may not multiply over the food, and it may not spoil the food. That is the hurdle technology. Then a variety of bacteria, mold, yeast are important as food spoilage organism. And important microorganism involved in spoilage of fish are bacteria में दो है, gram negative और gram positive. Gram negative is especially this Acinetobacter is there, Aeromonas is there, Alkaligenes is there, Enterobacter is there, Flavobacterium is there, Moraxella is there, Photobacterium is there, Pseudomonas is there, Vibrio is there. These are the gram negative bacteria. Gram positive, Bacillus is there, Corynebacterium is there, Enterococcus is there, Listeria is there, Microbacterium is there, Clostridium is there, Staphylococcus is there. These are the gram positive, which are playing a spoilage activity in the food. Fungi में Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Scoplariopis, then Saprolegnia is there, Cladosporium is there, Alternaria is there. These are the fungi. Yeast में Candida, then Cryptococcus, then Dibiromyces, then Hansenula, then Pichia, Rhodotorula, then Trichosporum. These are the yeast. So all these microbes are playing in the spoilage activity of the fish. So this is all about this microorganism, role and significance of microorganisms in nature and in foods. So basically here you have to remember the sources, primary source from where the microbes is entering into the fish. कौन सा है? Air is there, water is there, है ना? Then food handler is there, processing equipment is there. Soil also. Hello? Soil. Soil is there, yes. Soil is there, water is there, deck is there, ice is there. This is the primary source from which it will be contaminated. एक तो नेटिव माइक्रोबियल फ्लोरा तो रहेगा ही, मछली के बॉडी में या मछली के शरीर के ऊपर में नेटिव माइक्रोबियल फ्लोरा रहेगा ही, जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर रहा है, वो चाहे सरफेस ऑफ द फिश हो या गिल्स पे हो, वो हमारा रहेगा ही. बट ट्रांजिएंट फ्लोरा जो होता है वो आउटसाइड द इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम उसको कैप्चर करेंगे. सर फूड जो है, क्या सर फूड जो है वो भी तो प्राइमरी सोर्स ही हुआ ना? कौन सा फूड सर, फूड सर, फूड. यस सर. अरे फूड तो ऑलरेडी फूड है, फूड ही को तुम बना रहे हो, फूड को प्रोसेस कर रहे हो, तो वो प्राइमरी सोर्स क्या, फूड प्राइमरी सोर्स थोड़ी होगा. फूड तो तुम्हारा प्रोडक्ट हुआ, इस प्रोडक्ट को कोई कंज्यूम करेगा तो उसमें कहां से कंटामिनेशन हो रहा है. फूड प्राइमरी सोर्स नहीं हुआ. सोर्सेज दैट मींस कहां से हमें माइक्रोब्स हमारे फूड में कंटामिनेट हो सकता है. जैसे कैप्चरिंग करते हैं तो जैसे नेट चलाते हैं, अब नेट जा रहे हैं तो सॉइल में जा रहा है, कीचड़ में जा रहा है, तो दैट इज आल्सो वन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. अगर हम उसको ड्रेसिंग करते हैं, चाकू लेते हैं या ड्रेसिंग टेबल ले रहे हैं या चॉपिंग बोर्ड ले रहे हैं, जो वाटर से वॉश कर रहे हैं, अगर कोई आदमी फूड हैंडलिंग कर रहा है वो है, इक्विपमेंट कुछ यूज कर रहे हैं, मशीनरी कुछ यूज कर रहे हैं,
डॉली क्या कर रही हो यार? स्क्रीन पे चला रही है ऐसे, ठीक है। So these are the roles and significance of microorganisms in nature and foods. Next topic we will cover intrinsic and extrinsic factor affecting the growth and survival of microorganism, and that is very important topic. Factors, especially intrinsic and extrinsic, which affects the growth and survival of microorganism. It's a very important topic we will cover. Okay. ओके सर। यस सर। Any confusion भाई? कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। नो सर। यस सर। हाँ बोलो। सर हम जो फूड में है तो जो सब माइक्रोब्स ऐसा भी होता है सर कि डॉर्मेंसी में चल जाता है, लेकिन जब हम लोग उसको खाएंगे तो हमारा जो बॉडी है उसके लिए हो सकता है कि फेवरेबल बन जाए कंडीशन हमारे, तो पैथोजेनिक हो जाएगा सर। ठीक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डॉर्मेंसी बोल रहे हो, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होगा वो उसमें पैथोजेनिसिटी रहेगी जो हमारे बॉडी को डिजीज काउज कर सकता है या हमें इन्फेक्ट कर सकता है। डॉर्मेंसी बात कर रहे हो तो डॉर्मेंसी स्टेज जो होती है माइक्रोब्स के, वो है हमारा, एक हो गया स्पोर, हो गया स्पोर जिसको बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज है। एक होता है कैप्सूल भी होता है, ठीक है, दैट इज डॉर्मेंट स्टेज, ठीक है। तो सपोज स्पेशली जो हमारा से क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है उसका स्पोर्स है, इट मे गो टू दिस डॉर्मेंट स्टोर व्हेनेवर द फेवरेबल कंडीशन में कम, वो क्या होगा, स्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर के बैक्टीरिया बनाएगा। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो डेफिनेटली इट में प्रोड्यूस दैट टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन अगर फॉर्म हो गया तो डेफिनेटली इट में कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। सो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है इट में गो टू द डॉर्मेंट स्टेज, ठीक है। अगर पैथोजेनिक है, स्पेशली हो गया हमारा स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया स्पेशली, और पैथोजेनिक इन नेचर है तो वो हमारे शरीर को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन नॉन पैथोजेनिक जो है, अगर वो डॉर्मेंट में भी है तो वो हमारे शरीर को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें पैथोजेनिसिटी एक्टिविटी है ही नहीं। जो पैथोजेनिक इन नेचर है, अगर वो स्पोर फॉर्मर है तो वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन नॉन पैथोजेनिक है तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता, बिकॉज पैथोजेनिसिटी एक्टिविटी इज नॉट देयर इन सच टाइप ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है राजू? यस और कुछ कंफ्यूजन? सर हाँ बोलो ना। हेलो हाँ बोलो। सर, मछली जो है, जैसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो कंटामिनेट है, तो जो कंटामिनेट जो है सर मछली, तो वो तो डायरेक्टली सर जो फूड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे तो हो ही रहा है ना सर। थोड़ा रिपीट करो, तुम्हारा आवाज कट कट के आ रहा था। सर जो मछली है तो हाँ वो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कंटामिनेट हो रही है, तो वो जो कंटामिनेशन हो रहा है, तो जो हम लोग जो फूड उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सर, तो जो फूड दे रहे हैं डायरेक्टली, तो वो तो प्राइमरी सोर्स में ही आएगा ना सर। नहीं कल्चर की बात कर रहे हो तुम? कौन सा फूड दे रहे हो? मछली को ग्रो करने के लिए बोल रहे हो? हेलो सोनू, हेलो सर सोनू, नेटवर्क सोनू तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर नेटवर्क नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या पूछे तुम? कल्चर की बात कर रहे हो, जो फूड दे रहे हो क्या बोल रहे हो वो
वो तो बताओ। हम बोल तुम्हारा सर नेटवर्क जो नहीं आ रहा है, मछली ऐसा होती है जगह, सर, तो मछली में जो कंटामिनेट तुम्हारा नेटवर्क जो है ना, ऐसा जगह पे आओ जहाँ पे थोड़ा कोई नहीं नेटवर्क। सर, कोई नहीं सर, हम बाद में पूछ लेंगे। नहीं नहीं, अभी पूछना कोई दिक्कत, हम बताएंगे ना। रूम से थोड़ा बाहर निकलो ना, हम बताएंगे। पूछो, अच्छे से पूछो। ये सर पूछ रहे थे कि वो कंटामिनेट होती है, वो ऑर्गेनिजम से होती है, और जो माइक्रो कोई नहीं ऑर्गेनिजम सुन रहा उसमें है, तो हम डायरेक्ट हम फूड। आवाज कट कट के आ रहा है। बाकी लोग को सुनाई दे रहा है जो सोनू बोल रहा है? नो सर। कट कट के आ रहा है ना? नो सर। Yes, sir. देखो डॉली का बहुत अच्छा आ रहा है, कुमार गौतम का भी अच्छा आ रहा है भाई। थोड़ा जहां पे नेटवर्क है सोनू, वहां जाओ ना। आ जाओ सोनू इधर। हाँ, कुमार गौतम के पास जाओ। सोनू कुमार गौतम के पास जाओ, वहां बहुत पे अच्छा लाइट नेटवर्क है है तो उधर। सर। हेलो हाँ, अभी पूछो सोनू। सर, पूछ रहे थे कि जो भी सर जो मछली होती है वो तो पॉन्ड्स में होती है, तो उसमें जो कंटामिनेशन होता है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है सर। तो जो हम फूड देते हैं तो वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सर उसमें। अब फिर से कोई बात कर रहा है उधर, दो आदमी ने मत बात करो यार, एक आदमी को बोलने दो। हाँ, तो जो हम फूड देते हैं तो वो कंटामिनेट होता है। सोनू एक मिनट, मुझे म्यूट करना पड़ेगा इस सबको। कुमार गौतम, हाँ अभी बोलो। सोनू, सोनू, आई थिंक सोनू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सोनू, सोनू, सर रहने दीजिए, नहीं हो रहा है। अरे यार वो क्या पूछा समझ में नहीं आया मेरे को। सोनू भी गायब हो गया, कुमार गौतम भी गायब हो गया। सर ऑफिस में जाकर के वहाँ पूछ लेगा सर, यहाँ नेटवर्क तो है। चलो ठीक, ठीक है थैंक यू चलो। सर। थैंक यू सर। हम्म।